Hello everyone, in the series of secondary memory management, today we will discuss about FCFS and SSTF disk scheduling algorithm. In the some previous lecture we discussed about why we need a disk scheduling algorithm, and we also discussed the structure of a disk, that means how the data are stored into a disk, and we understand that the data are stored into a disk, into a track and a sector. So anyone is directly watching this video, it's my request to them, please see the last video so that we can understand the disk scheduling concept very clearly. Disk scheduling is done by operating system to schedule the I/O request arise for the disk access. Disk scheduling is also known as the I/O disk scheduling because disk is treated as an I/O device. So here the scheduling is also known as the I/O scheduling. The operating system is responsible for using hardware efficiently, and they require two things. The first one is called fast access time and the second one is called the minimum seek time. That means the algorithm which gives the minimum seek time and fast access is called the best disk scheduling algorithm. In last lecture we discussed that operating system have the many disk scheduling algorithms like FCFS, SSTF, scan, see, scan, look and see. In this particular session we discuss about FCFS and SSTF disk scheduling algorithm in depth. We also discuss the advantage and disadvantage of FCFS and SSTF algorithm, so that we can further elaborate the algorithm which overcome the disadvantage of SSTF and FCFS. FCFS is the simplest disk scheduling algorithm. It works on the principle of first come first serve. That means जो प्रोसेस पहले आएगा वो प्रोसेस पहले सर्व किया जाएगा. That means जो रिक्वेस्ट हमारे रीड राइट हेड के पास पहले आएंगी वो पहले सर्व की जाएंगी. So this is a very simplest algorithm. In this diagram we can see that this is a structure of a platter and this is a read write head. The read write head is moving on the track. Tracks is basically a concentric circle जहाँ पर डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, and disk is rotating with the help of spindle and track is moving up and down. So the rotatory motion of disk and up and down motion of read write head will give the facility to access all the portion of a disk. तो यहाँ पर ये सारे के सारे ट्रैक्स हैं, जो भी डेटा स्टोर है वो सारे के सारे ट्रैक्स पर स्टोर है. तो रीड राइट हेड ये ट्रैक्स को ऊपर अप एंड डाउन मूव करता है और जो डिस्क है वो जो प्लेटर है वो रोटेट करता रहता है. इस तरीके से सारे के सारे एरिया को हम लोग इन दोनों मोशन की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं. We know that in the multi-program environment many processes can run simultaneous and they also access the data simultaneously, and all the requests are stored into a disk queue, and of read write head will serve these requested according to different techniques, and these techniques are called the disk scheduling algorithm. When we talk about the FCFS disk scheduling algorithm, all the requests are served in the FCFS fashion, यानी कि जो रिक्वेस्ट पहले आएगी वो रिक्वेस्ट पहले सर्व की जाएगी. तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल की हेल्प से FCFS algorithm को समझते हैं. देन इसके बाद we will discuss advantage and disadvantage, and on the behalf of that disadvantage we can elaborate the next algorithm that is called the SSTF. In the FCFS scheduling algorithm we have a disk queue in which all the requested are stored. तो ये हमारा रिक्वेस्ट क्यू है और यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि रीड राइट हेड की का लोकेशन कहाँ पर है. तो हेड स्टार्ट एट लोकेशन नंबर 53. तो ये क्या है, डेट मीन 0 इज द इनर मोस्ट ट्रैक. आफ्टर दैट ट्रैक नंबर 14, 37. यहाँ पर आपको जितनी भी रिक्वेस्ट दी जाएंगी उन रिक्वेस्ट को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में पहले इस ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे. तो सबसे पहले हमें 0 that is the innermost cylinder, and that 199, that means in this platter 200 tracks are there from 0 to 199. तो यहाँ पर 200 ट्रैक्स हैं और ये सारी की सारी रिक्वेस्ट हमको सर्व करेंगे. तो जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट हैं उनको हम लोग सबसे पहले इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे. दैट मीन्स हमें चाहिए 14 इंक्रीजिंग ऑर्डर में 14 ड्रॉ कर दिया. आफ्टर दैट 37, राइट डाउन 37, 53 एंड सो ऑन 183. तो हमने 183 को ड्रॉ किया. उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड को मूव करेंगे. ठीक है, तो हमारी स्टार्टिंग लोकेशन क्या है, डेट इज 53. तो रीड राइट हेड की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो है 53. अब हमको जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई है उसी ऑर्डर में रिक्वेस्ट को सर्व करना है. सबसे पहले हमारे पास आया है 98. तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचना है, आपको तुरंत 98 पोजीशन से मूव कर जाना है. तो हमारा रीड राइट हेड यहाँ से ट्रैक मूव करते हुए जाएगा ट्रैक नंबर 98 पर. तो जब ट्रैक नंबर 98 पर आएंगे तो वो कुछ मूव करेगा, जो भी इसका मूवमेंट होता है उसको हम लोग हेड मूवमेंट बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आ गए तो हमने 98 को सर्व किया. आफ्टर दैट 183 को सर्व करना है, तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है. देन इसके बाद रीड राइट हेड मूव कर जाएगा 183 पर. ठीक है, इसके बाद हमें 37 को सर्व करना है. तो यहाँ से हम चले जाएंगे 30
7 नंबर वाले ट्रैक के पास, दैट इज 37 नंबर। उसी तरीके से हमें इसके बाद 122 तो 122 पर, आफ्टर दैट 14 पर, उसके बाद 124, 65 एंड 67। तो दैट इज द लास्ट रिक्वेस्ट। रीड राइट हेड तब तक मूव करेगा जब तक सारी की सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करेंगे। तो रीड राइट हेड का एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाने में समय लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड द सीक टाइम। तो यहाँ पर रीड राइट हेड का जितना भी मूवमेंट होगा वो बेसिकली टोटल सीक टाइम को बताएगा कि सारी रिक्वेस्ट को सर्व करने में कितना टाइम लगा और हेड मूवमेंट कितना। अगर आपको हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना है, देन हाउ टू कैलकुलेट द हेड मूवमेंट। तो जितनी बार भी हेड मूव किया है उसके टोटल मोशन को हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम उसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ से सबसे पहले कहाँ पर आए, 53 से 183 पर आया, तो मैंने 183 माइनस 53 को कैलकुलेट किया, देन प्लस 183 माइनस 37, तो 183 माइनस 37। आफ्टर दैट 128 में से 37 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 122 में से 14, फिर 124 में से 14, आफ्टर दैट 154 में से 65 एंड एट लास्ट 57 माइनस 65। तो आप इसको टोटली कंप्यूट करेंगे, यू विल गेट द 640। दैट मीन्स द टोटल हेड मूवमेंट इन FCFS एल्गोरिथम इज 640, यानी कि इस रेफरेंस सिस्टम को अगर हम FCFS से सॉल्व करेंगे तो टोटल हेड मूवमेंट आएगा 640 सिलेंडर। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वर्किंग ऑफ FCFS। आपको उसमें जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई उसी ऑर्डर के अंदर सर्व करना है रिक्वेस्ट को। नाउ वी डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ FCFS एल्गोरिथम। फर्स्ट वी डिस्कस द एडवांटेज। फर्स्ट एडवांटेज इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। बिल्कुल सही बात है कि इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई है उसी ऑर्डर में आपको सिंपली सर्व करना है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है इम्प्लीमेंटेशन भी इसका, आप किसी भी क्यू की हेल्प से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज इज एवरी रिक्वेस्ट गेट्स अ फेयर चांस, यानी कि यहाँ पर हर रिक्वेस्ट को फेयर चांस मिलेगा, यहाँ पर किसी के साथ कोई बाइजिंग नहीं होगी। सिंस यहाँ पर सीडी राइट हेड हमारा बैच नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम बैच नहीं है, बाइजिंग नहीं परफॉर्म कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर सभी को फेयर चांस मिल रहा है। और बैच ना होने की वजह से भी ये स्टार्वेशन यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर प्रोसेस में डिले तो हो सकता है लेकिन कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकती। बट देयर मे बी इफेक्ट ऑफ कॉन्वॉय, दैट मीन्स इट मे बी पॉसिबल कि किसी छोटी प्रोसेस को सर्व करने से पहले उसको बहुत समय तक का वेट करना पड़ जाए, क्योंकि हमारा रीड राइट हेड किसी बड़ी प्रोसेस या बड़े ज़्यादा नंबर वाले ट्रैक के ऊपर उसको सर्व करने में बिजी हो जाए। दैट्स व्हाई वहाँ पर कॉन्वॉय इफेक्ट तो देखा जा सकता है, लेकिन स्टार्वेशन की कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। द नेक्स्ट एडवांटेज इज कैन बी यूज विद द लेस लोड। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई उसी ऑर्डर में हमें सर्व करना है, तो उसको हम लोग बहुत ही कम लोड पर थोड़ी आसानी से सॉल्व कर यूज करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ दैट FCFS डज नॉट ट्राई टू ऑप्टिमाइज द सीक टाइम। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सीक टाइम को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ भी दिमाग नहीं लगाता है, जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई उसी ऑर्डर में इसको सॉल्व कर देता है। तो यहाँ पर सीक टाइम को ऑप्टिमाइज करने का क्या कोई भी प्रोविजन नहीं है। मोर वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर वेटिंग टाइम ज़्यादा होगा और रिस्पॉन्स टाइम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हेड मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये बिल्कुल भी स्मार्ट तरीके से काम नहीं करता है कि पास की रिक्वेस्ट को पहले सर्व कर दिया जाए ताकि प्रोसेसर का वेटिंग टाइम कम हो जाए और उसका रिस्पॉन्स टाइम भी कम हो जाए। इस वजह से यहाँ आपको वेटिंग टाइम रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इट इज कॉल्ड इनएफिशिएंट। तो ये एल्गोरिथम इनएफिशिएंट है क्योंकि यहाँ पर आपको हेड मूवमेंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, सीक टाइम भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हम लोग नहीं करते हैं। जहाँ पर लोड कम है वहाँ पर तो ये आसानी से काम कर जाएगा, लेकिन जहाँ पर लोड ज़्यादा होगा वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है तो हेड मूवमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो हेड मूवमेंट ज़्यादा मिलने की वजह से आपका एक्सेस टाइम जो होगा वो स्लो हो जाएगा। तो दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ FCFS एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हेड मूवमेंट को कम करने के लिए हमें कुछ स्मार्ट एल्गोरिथम यूज करनी पड़ेगी। दैट एल्गोरिथम इज बेसिकली कॉल्ड SSTF एल्गोरिथम। एज द नेम इम्प्लाइज SSTF एल्गोरिथम प्रोसेस सीक टाइम फर्स्ट, यानी कि जिस रिक्वेस्ट को सर्व करने में सीक टाइम सबसे कम होगा पहले उस रिक्वेस्ट को सर्व किया जाएगा, then उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट को सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एजेंडा यही है कि हम पहले उस रिक्वेस्ट को सर्व करेंगे जिसमें सीक टाइम कम हो, जहाँ पर हेड मूवमेंट कम करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, देन इसके बाद हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को देख सकते हैं। हमने सेम एग्जाम्पल लिया है, सेम ट्रैक्स की रिक्वायरमेंट है जिनको हमें एक्सेस करना है, जिनकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करना है और हेड मूवमेंट हमारा है 53। तो इस एल्गोरिथम में को हेड मूवमेंट दे रखा है। आफ्टर दैट आपको वही सारे का सारा काम करना है, जितनी भी आपको ट्रैक्स को कवर करना है सारे सारे ट्रैक्स को हम लोग एक ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम इनर मोस्ट ट्रैक टू आउटर मोस्ट ट्रैक के बीच में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने 53 पर आपके पास सारे के सारे
रिक्वेस्टेड क्यू के अंदर स्टोर हैं, तो आप पहले कहाँ पर जाएंगे, 53 पर हैं हम, तो 53 के जो सबसे क्लोजेस्ट रिक्वेस्ट होगी सबसे पहले वो सर्व की जाएगी, क्योंकि पर जाने से आपका सीक टाइम सबसे कम होगा। अगर यहीं पर अगर हम FCFS यूज कर रहे होते तो हमको सिंपल कुछ नहीं करना था, 58 के बाद 98 पर जाना था, तो यहाँ पर हेड मूवमेंट आपका तुरंत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर वो इसके बारे में दिमाग ही नहीं लगाता है कि आपको सीक टाइम घटाना है। लेकिन SSTF क्या बोलता है कि हमको सबसे पहले वो रिक्वेस्ट सर्व करनी जहाँ पर सीक टाइम कम हो। 53 से अगर हम 65 पर जा सकते हैं, 53 से हम 37 पे जा सकते हैं, लेकिन जब हम 37 पे जाएंगे तो यहाँ पर सीक टाइम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर हम 65 पर जाएंगे। तो हम सबसे पहले रिक्वेस्ट सर्व करेंगे 65 पर, यहाँ पर हमने सबसे पहले 65 को सर्व किया। अब 65 के बाद हम किस रिक्वेस्ट को सर्व करेंगे, वी हैव 2 ऑप्शन, या तो हम 67 पर जाएं या तो उसके नियरेस्ट है 37। लेकिन अगर हम 65 से 37 पर जाएंगे तो इट विल टेक मोर टाइम एज कम्पेयर टू अगर हम 65 से 67 पर जाएंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट का ही सीक टाइम लगेगा, तो हम उसके बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट पूरी करेंगे 67। तो उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, देन वी हैव 2 ऑप्शन, आइदर वी गो इनटू 98 ट्रैक और वी गो 37 ट्रैक। तो 37 ट्रैक पर जब जाएंगे तो वहाँ पर हमारा सीक टाइम कम होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग 37 में रिक्वेस्ट को पहले सर्व करेंगे। आफ्टर दैट हम सर्व करेंगे 14 को, क्योंकि 14 पे जाने पर हमारा सीक टाइम कम होगा एज कम्पेयर टू 98। तो उसके बाद हमने 14 वाले रिक्वेस्ट को सर्व किया, तो 14 पर आ गए। आफ्टर दैट यहाँ से जो सबसे नियरेस्ट है वो है 98, तो 98 को सर्व करेंगे। आफ्टर दैट 127, 122, आफ्टर दैट 122 एंड एट लास्ट रिक्वेस्ट 180। तो यहाँ पर हमारा जो रीड हेड है वो बहुत ही ऑप्टिमल तरीके से हेड को मूव कर रहा है, और जहाँ पर सीक टाइम कम है पहले हम उसको सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ओवरहेड है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से ही सारे के सारे सीक टाइम्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि वो डिसीजन ले पाए कि एक फर्दर मोशन के बाद हम किधर मूव कर पाएंगे। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर हम 98 वाले ट्रैक पर हैं और उसके बाद हमको 100 पर, या उसके बाद हमको एक और है हम जा सकते हैं 96 पर और हम हैं 98। तो इन दोनों ही रिक्वेस्ट में आप देखेंगे डिफरेंस आपका 2 मिनट का आएगा। तो यहाँ पर इस टाई को ब्रेक करने के लिए जिस डायरेक्शन में हमारा रीड राइट हेड मूव कर रहा है हम उसी तरफ को जाएंगे। सपोज अगर 98 पर हमारा रीड राइट हेड 95 वाले ट्रैक से आया है तो हम मूव करेंगे फर्दर 100 की तरफ, और अगर हमारा रीड राइट हेड 100 से 98 पर आया है तो हम इस टाई को ब्रेक करने के लिए 96 पर मूव करेंगे। यानी कि जिस डायरेक्शन में वो मूव करता हुआ आ रहा है रीड राइट हेड, हम पहले उसी डायरेक्शन में जाके उस रिक्वेस्ट को सर्व करेंगे। ऐसा इसलिए है कि अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, जिसकी वजह से आपका एक्सेस टाइम स्लो हो जाएगा। और अगर हम एक डायरेक्शन में मूव करते ही जा रहे हैं तो फर्दर आगे बढ़ने में हमें डायरेक्शन चेंज करने का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। टोटल हेड मूवमेंट को कैलकुलेट करें तो हेड मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक मूव करें हैं तो 67 माइनस 50 थी, दैट इज फर्स्ट रिक्वेस्ट। आफ्टर दैट 60 माइनस 14 एंड आफ्टर दैट 183 माइनस 14। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 236 सिलेंडर का टोटल हेड मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए सेम रिक्वेस्ट है और रीड राइट हेड की पोजीशन भी 53 पे ही लोकेटेड थी। हमने जब FCFS लगाया तो हमें वहाँ पर 630 हेड मूवमेंट मिला टोटल, और यहाँ पर हमको इसका 1/3 हेड मूवमेंट मिला, यानी कि SSTF एल्गोरिथम ऑप्टिमल एल्गोरिथम है जो सबसे बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करती है। बट इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टू डिस्कस द एडवांटेज ऑफ SSTF। तो एडवांटेज इज दैट इट्स रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी डिक्रीज, यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेसर का रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम है। द सेकेंड एडवांटेज थ्रूपुट इंक्रीज। यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम कम है, हर प्रोसेस को जल्दी रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर बहुत ही जल्दी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, जिससे हमारे सिस्टम का थ्रूपुट बढ़ जाए। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ SSTF? फर्स्ट डिसएडवांटेज इज ओवरहेड टू कैलकुलेट द सीक टाइम इन एडवांस। यहाँ पर हमको क्या करना है कि जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा है कि अगर हम किसी पोजीशन पर हैं तो सबसे पहले हमको सीक टाइम एडवांस में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि हम डिसाइड कर पाएं कि हमको आइदर लेफ्ट मूव करना है और राइट मूव करना है या किस रिक्वेस्ट को सर्व करना है। तो यहाँ पर एक ओवरहेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमको किस डायरेक्शन में मूव करना है और किस रिक्वेस्ट को सर्व करना है। इस एग्जाम्पल में तो हमने स्टैटिक क्यू को ही लेके सॉल्व कर दिया है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही है। लेकिन रियल टाइम में यहाँ पर रिक्वेस्ट रन टाइम पर भी आती रहती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा टफ हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कि वो सीक टाइम को कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ पर ओवरहेड ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिसएडवांटेज होता है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट भी है क्योंकि वो सबसे पहले उस रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है जिसका सीक टाइम कम है। तो इस बाइटिंग की वजह से यहाँ पर कुछ ऐसी प्रोसेस होंगी जिनको लंबे समय तक का वेट
करना पड़ सकता है, यानी कि यहाँ पर स्टारवेशन की समस्या डेफिनेटली हो सकती है और होती भी है, क्योंकि उन प्रोसेसेस का जिसका सीक टाइम बहुत ज़्यादा है उनका नंबर कभी कभी नहीं आ पाता या बहुत लंबे समय तक उनको वेट करना पड़ जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज suffering from the starvation. Third disadvantage is that the high variance of response time as SSTF favor only some. तो यहाँ पर वेरियंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सपोज दैट अगर कोई प्रोसेस 98 पर है और उसको सर इसके बाद हमें जाना है 100 पर, और 100 के बाद अगर हमको वापस 96 पर आना है तो इट विल टेक मोर टाइम, यानी यहाँ पर वेरियंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि FCFS is suffering from the more waiting time and response time, and it's also inefficient, and it also generates the more head movement, and SSTF is suffering from starvation. So how to remove that starvation, it will be discussed into a next distribution algorithm, that is scan algorithm and C-scan algorithm. So in next lecture we will discuss about scan algorithm and C-scan algorithm. Thank you.